session. I am the member. I am Sadaf Naveed, will be your host for today's session. I am the member of Nutrivention brand. First of all, I warmly welcome you people for joining our amazing webinar series. Today's session is all about grasping the concepts of how to improve diagnostic skills being a dietitian. For this purpose, we invited dietitian Fatima Masood as a guest speaker on behalf of Nutrivention brand. Dietitian Fatima Masood is experienced dietitian, MPhil Food and Nutrition consultant dietitian and lifestyle moderator, CEO of Nahal Club. If we talk about Nutrivention, Alhamdulillah, our Nutrivention brand is well-known brand throughout the Nutrivention, fitness and wellness industry of Pakistan because we deliver and believe in quality education. Nutrivention brand is selected as a champion in OCW in this year also. So it's up to you, dietitian Fatima Masood. Ma'am, you can start now, please. Okay, Assalamu alaikum. Dietitian Fatma is here. Thank you so much, Sada. Can you share the screen, please? And students, if you have any queries, please do write in chat box. You will be allowed to ask questions in question and answer session, inshallah. Sadaf, kindly share the screen. Okay, ma'am. Ma'am, you are allowed to share the screen. Sadaf, I am from mobile. तो पीपीटी आपके पास है ना, आप अपनी उधर से स्क्रीन शेयर कर दीजिए. हाँ. Yes, this is. Should I start? Should I start? Yes, ma'am. Okay. Assalamu alaikum. I am with the topic of improve diagnostic skills being a dietitian. I am Fatima Masood, working as a consultant dietitian and a lifestyle moderator. First slide. Yeah, thank you. With the topic of improved diagnostic skills being a dietitian, I am Fatima Masood, working as a consultant dietitian and lifestyle moderator from last 3 years. I did my master's from UF in the field of food and nutrition. I am also running my healthy club with the name of Nahal, which is Nutrition and Healthy Living Club. The purpose of this club is just to help the people to improve their health with the food, awareness of the food, or with the lifestyle modification. Okay, next slide, please. Whenever we discuss the dietitian's roles, we must aware about the definition of the dietitian. What are the duties of the dietitians, and what is the real standard definition of the dietitian? What is the difference between dietitian and the nutritionist, and dietitian and the doctors? Obviously, we all know about the difference between dietitian and doctors.
So difference between dietitian and the nutritionist is that dietitians are qualified to diagnose and diagnose your health medical complications, and according that design the diet to treat that condition. Okay, so first basic duty of dietitian आपकी क्या है कि आपने जो आपके पास client आ रहा है, patient आ रहा है, तो obviously Sadaf, hope this is for the nutrition students ही है ना यहाँ पे सारे, and from 1 to 2 year semester they all know about the basics of the nutrition. जी Sadaf? Okay, thank जी you. मैम। Okay, thank you. तो डाइटिशियंस कौन होते हैं? जो कि आपकी जो क्लाइंट आ रहा है उसकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन जो वो फील कर रहा है उसके पीछे रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर सके, उसको डायग्नोज कर सके कि अगर वो ये फील कर रहा है तो उसकी बेसिक रूट कॉज क्या है, और उसके मुताबिक उसको डाइट को डिजाइन कर सके। ठीक है, अगर तो आप इसमें से किसी एक चीज में भी आपकी एबिलिटी इतनी प्रॉपर नहीं है, आपको अपनी इन दोनों चीजों में से किसी एक पे भी ग्रिप नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली आप एक अच्छे कंसल्टेंट डाइटिशियन नहीं बन सकते, क्योंकि बेसिक आपकी ये दो क्वालिटीज होनी चाहिए बीइंग अ डाइटिशियन व्हेन यू आर वर्किंग इन अ क्लिनिकल सेटअप। तो फिर आपके पास ये दोनों चीजों पे ग्रिप होनी चाहिए ताकि आपको पेशेंट की जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है उसको डायग्नोज कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली आप डाइट को डिजाइन कर सकें। आई एम ओनली सेइंग दिस इन द क्लिनिकल सेटअप्स। ठीक है, हॉस्पिटल सेटअप्स में हमारे पास डायग्नोसिंग के लिए डायग्नोस्टिक टूल्स अब इजीली अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैब टेस्ट और अदर स्टफ। सो ये जब हम क्लिनिकल सेटअप्स में आउटडोर पेशेंट्स में डील कर रहे होते हैं तो पर्टिकुलरली हमें इन दोनों चीजों को डील करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, thank you. Whenever we say we are here to diagnose and design the diet, so we must know about the definition of the diet too. हमने डाइटिशियन की डेफिनेशन पढ़ ली, उससे हम अंडरस्टैंड हो गया हमें डाइट का भी पता होना चाहिए कि हमारी डाइट क्या है, क्योंकि बीइंग अ डाइटिशियन हम ये अपनी 4 ईयर एजुकेशन जो होती है एमफिल तक में हम ये क्लेम करते हैं कि हमने अपने पेशेंट की जो हेल्थ कंसर्न है उसको डाइट से डील करना है। हम वी आर डिफरेंट फ्रॉम द डॉक्टर्स इन दिस रिगार्ड कि हमने डाइट को एज अ मेडिसिन करना होता है, हमने सब मेडिकेशंस को, एंटीबायोटिक्स को या सप्लीमेंट्स को एज अ डाइट के ट्रीटमेंट हमने फॉलो नहीं करवाना होता। सो आपको पता होना चाहिए कि डाइट क्या है। बेसिकली डाइट इज द, अगर हम एक उसमें कहेंगे, डाइट इज द कम्बिनेशन ऑफ फूड, हाउ वी डिफाइन फूड इज द कंपाउंड दैट गिव यू एनर्जी फॉर योर daily functions, for your body production and for your body maintenance। अगर आपकी फूड जो है वो ये तीनों चीजों के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रही है तो इसका मतलब है कि आपके जो पेशेंट है या जो आपका कंज्यूमर है वो एक फूड कंज्यूम कर रहा है। अगर इन तीनों इंग्रेडिएंट्स में, अगर इन तीनों ड्यूटीज में से कोई एक आपकी फूड का जो इन पार्ट है वो नहीं प्ले कर रहा तो अनफॉर्चुनेटली आपका क्लाइंट जो है या आपका कंज्यूमर जो है वो फूड को नहीं ले रहा, और जब फूड नहीं लिया होगा तो इसका मतलब है उसकी डाइट भी अच्छी नहीं होगी या उसकी डाइट भी प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि वी क्लेम combination of the food is known as diet. An appropriate diet is adequate and must consider the individual's following characteristics. It should be adequate in term of calories, in term of nutrients. Being a dietitian, हमारा फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए आपके क्लाइंट्स की, कंज्यूमर्स की न्यूट्रिएंट बैलेंस। ठीक है, हमने क्योंकि हम सारे we know our all medical complications, our health totally 99% रिसर्चेस भी साबित कर रही हैं कि जो हमारी हेल्थ है वो हमारी न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है, इधर इट्स इन द टर्म ऑफ जेनेटिक्स और इधर इन द टर्म ऑफ फिजिकल और एनी अदर हेल्थ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, उसमें कहीं ना कहीं हमारी डाइट का रोल होता है। एंड बीइंग अ डाइटिशियन हमें अपने ऊपर स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि हमारी जो डाइट है वो हैज अ पावर टू हील द पेशेंट और टू डिटोरेट द पेशेंट्स हेल्थ। आपकी जो डाइट है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड होनी चाहिए जब आप अपने उसके पेशेंट की डाइट को डिज़ाइन करेंगे? उसकी एज क्या है, उसकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, इधर इन विच स्टेज, क्योंकि वी ऑल नो कि जिस तरह हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट चेंज होती हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो भी विद द पैसेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्टेजेस चेंज होती रहती हैं। फूड हैबिट्स क्या हैं आपके कंज्यूमर की, फूड अवेलेबिलिटी क्या है, लाइक इन दिस पैंडेमिक एंड इकोनॉमिक स्टेटस हम अगर अपने पेशेंट को प्रोटीन रिच फूड्स रिकमेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन रिच आर कंसीडर्ड एज द सो इकोनॉमिकली दे आर हाई ऑन द पेशेंट्स बजट, तो अगर हम उसको एक एग रिकमेंड कर रहे हैं, इधर ही कैन अफोर्ड और नॉट, तो अगर आप नहीं वो अफोर्ड कर पा रहा तो उसके इंग्रेडिएंट्स
उसके रिप्लेस में आप उसको क्या दोगे, यू मस्ट नो अबाउट द फूड अवेलेबिलिटी ऑफ द पेशेंट। टेस्ट प्रेफरेंस उसकी क्या है, इधर यू वांट टू गो विद द स्वीट और विद द वांट टू गो विद द सॉल्टी और लाइक दिस स्टफ। फाइनेंस स्टेटस उसका क्या है, फैमिली ट्रेडिशंस एंड मिथ्स क्या हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ इंडो-पाक सोसाइटी और इधर इन वर्ल्ड वाइड हमारी फूड मिथ्स बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। ठंडे गर्म की तासीर हो गया डिफरेंट है, तो उसको आपने अपने क्लाइंट को किस तरीके से लेके चलना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो इफेक्टिवली यू डील विद दीज टाइप्स ऑफ कि आपकी पेशेंट स्टेटस डैमेज ना हो और आपकी पेशेंट की मिथ्स के रिगार्डिंग जो वो है उसकी जो मिसकंसेप्शंस हैं वो भी आप उसको किस तरीके से डील कर सकें। स्टोरेज एंड प्रिपरेशन फैसिलिटीज क्या है, either he or she can store your required food, your recommended food or not easily. Next slide please. ओके, इसके बाद बात आती है, सबसे पहले हमने ड्यूटीज ऑफ द डाइटिशियन की आइडेंटिफिकेशन कर ली। हु आर द डाइटिशियन बेसिकली, फूड डाइट क्या होती है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन स्टेटस। Nutrition status is the degree to which the physiological nutrient needs are met for an individual. Nutrition status assessment is the fundamental and the basic foundation of the nutrition care. Nutrition care process has the 4 steps. ठीक है, nutrition status हमें patient को identify करना होता है। this is the basic excuse me, this is the basic thing to tell कि हम अपने पेशेंट को देख के न्यूट्रिशन स्टेटस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो उसकी हेल्थ किस रेंज में है, either he is suffering from the malnutrition phase or he is BMI की किस रेंज में है, उसके हमारे बाकी पैरामीटर्स हैं उसमें वो एक हेल्दी लिविंग बीइंग कहने की स्किन और लाइफ हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक हमें पूरा उतर है ब्यूटी के, लेकिन इंटरनली उसकी जो बॉडी है उसमें कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है। न्यूट्रिशन स्टेटस हैव टू आइडेंटिफाई दिस। इसके भी अगर हम इस 4 स्टेप्स हैं, इसमें भी अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें तो उसमें क्या है, असेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन स्टेटस। ये हम असेसमेंट कैसे करते हैं, वाया द असेसमेंट परफॉर्मेंस, वी ऑल नो अबाउट दिस। उस सेकेंडली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस। न्यूट्रिशन स्टेटस के अंदर भी हमारी न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस की को मेन लीड हासिल है। अगर आपकी डायग्नोस्टिक स्किल्स न्यूट्रिशनली बहुत अच्छी होंगी तो ही आप न्यूट्रिशन स्टेटस को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उसको फूड इंटरवेंशंस की तरफ लेके जा सकेंगे, उसकी मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन कर सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, then what is the nutrition diagnosis? Nutrition diagnosis is the identification and labeling that describes an actual occurrence, risk, or the potential for developing a nutritional problem. बेसिकली न्यूट्रिशनल डायग्नोस क्या होता है कि जब हम किसी क्लाइंट का, कंज्यूमर के, जब हमने देखना होता है कि वो उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी अक्रंस क्या है, किस वजह से हो रहा है, उसकी रीजंस क्या है, अक्रंस मीन्स कितनी देर से है, उसकी क्या पोटेंशियल डेवलपिंग रीजंस क्या क्या हो सकती हैं और वो किस एडवर्स इफेक्ट्स तक हमें लेके जा सकती हैं अगर वो किसी उसके अंदर किसी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के चांसेस हैं। न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस शुड नॉट बी confused with a medical diagnosis. A nutrition diagnosis changes with the patient to patient. ये patient to patient भी change हो सकते हैं और सेम भी रह सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को विटामिन डी के अगर हम सिम्टम्स पढ़ते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मेनली बोन्स की हम डिटोरेशन की बात करते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी आर रिलेटेड विद द बोन्स। लेकिन अगर एक पेशेंट के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बोन्स को इशू नहीं हो रहा, उसके हार्मोन्स को इफेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पेशेंट के भी हार्मोन्स को इफेक्ट हो, उसकी बोन्स को भी हो सकता है। तो इट्स मीन्स न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस कैन बी चेंजेस विद द पेशेंट टू पेशेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस को जब भी हम बात करेंगे तो उसको हम 3 चीज़ों में लेके जाएंगे। अगेन वही, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसकी एटियोलॉजी क्या है, प्रॉब्लम की रीजंस किस किस वजह से पेशेंट ये चीज़ फेस कर रहा है, किस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से वो ये चीज़ फेस कर रहा है, उसके सिम्टम्स वो क्या फेस कर रहा है। either his symptoms are same with the next client, he's that facing same symptoms or not. ओके, तो जब भी हम न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें भी हम सबसे पहले उसके प्रॉब्लम लिखेंगे, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसके रीजंस लिखेंगे, उसके बाद उसकी साइंस एंड सिम्टम्स लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हमने डाइटिशियन के अकॉर्डिंगली अपनी ड्यूटीज का देख लिया कि हाउ वी कैन बी अ गुड डाइटिशियन, what is the role of the diet, what is the importance of the diet. we all know कि diet जो है वो आपकी हेल्थ को 99%
बनाने में और डिटेरेट करने में क्रिटिकल रोल प्ले करती है। और जितना बीइंग अ डाइटिशियन हमारा इस पे बिलीव होगा, उतना हम अपने पेशेंट के साथ भी सिंसियरली काम कर सकते हैं और अपनी फील्ड के साथ भी सिंसियरली काम कर सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली we don't know, we have no idea about the magical power of the food that is available in our kitchen or in our surrounding. ओके, अब फूड की जब हम बात करते हैं तो फूड में हमारे पास बेसिकली फूड से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्वियसली। तो न्यूट्रिएंट्स की जब हम बात करें तो हमें मैक्रोस न्यूट्रिएंट्स वो ऑल नो अबाउट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैं सिंपल एग्जांपल अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से देती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ, मैं आपको भी उसी तरीके से दूंगी। वी ऑल नो अबाउट, दिस इज अ एग्जांपल यू कैन से, बट दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैक्रो इंपॉर्टेंस ऑफ द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो। हम में से हर किसी को बिरयानी की रेसिपी बनानी जरूर आती है। बिरयानी के अगर हम बेसिक इंग्रेडिएंट्स देखें तो उसमें सबसे पहले होता है राइस, फंडामेंटल इंग्रेडिएंट है, चिकन या जो हमारे पास मीट होता है, और थर्ड ऑयल। ये तीनों चीजें हमारे पास अगर नहीं होंगी, वी कैन नॉट मेक अ बिरयानी। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द ग्रेडिंग, हम नहीं कर रहे कि परफेक्ट होगी नहीं होगी। ये तीनों हमारे पास फंडामेंटल पार्ट्स हैं। इसी तरह के अंदर जो स्पाइसेस ऐड की जाते हैं, लाइक गरम मसाला चाट हो गए, ब्लैक पेपर, रेड पेपर होगी, सॉल्ट हो गया, दीज स्पाइसेस जो बिरयानी मसाला होता है, वो हमारी बिरयानी की परफेक्शन की तरफ हमें लेके जाते हैं। जितनी उसकी रेशो हम अच्छी रखेंगे, उतनी हमारी बिरयानी बनेगी तो सही। पहले तीनों इंग्रेडिएंट्स तो ऑब्वियसली बन तो रही है, लेकिन कितनी अच्छी बनेंगी depends upon spices or the amount of the spices and the amount of the other ingredients rather than the rice or these हम जो use कर रहे हैं। इसी तरह macronutrients, you can say these are very important for your body's functions, like the rice, like the meat, or like the oil of your biryani। अगर आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी डेली डाइट में पेशेंट की रिकमेंडेड अमाउंट में नहीं होंगे, आपकी बॉडी जो है आपकी पेशेंट की, आपकी वो एक हेल्दी वे में कभी भी रोल प्ले नहीं कर सकेगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल हम 1 kg, आई एम नॉट परफेक्ट इन द कुकिंग, सो आई एम टेलिंग विद द रफ एस्टिमेट। अगर हम एक 1 kg चिकन के 1 kg राइस के लिए हमें फॉर एग्जांपल हाफ के जी चिकन चाहिए, अगर हम हाफ के जी चिकन नहीं यूज करते तो हमारी बिरयानी विल नॉट बिकम अ गुड। ठीक है, रेशो होती है ना, इसी तरह बॉडी में भी एक रेशो बनाई है कि हमें डेली अमाउंट्स में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इतने, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट इतने चाहिए। अगर हम इतने रिकमेंडेड अमाउंट में नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी जो है हेल्दी वे में फंक्शन नहीं करेगी। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सेम लाइक द स्पाइसेस जो हमने बिरयानी में यूज की थी, ये आपकी बॉडी के मेन फंक्शंस को तो परफॉर्म नहीं करती, लेकिन आपकी बॉडी अपने फंक्शंस को किस परफेक्ट रेशियो से कर सकती है, वो डिपेंड करती है आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की इनटेक पे। होप दिस इज द क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो, क्योंकि डायग्नोस्टिक स्किल्स की जब भी हम बात करते हैं, फिर अगेन हमने क्लेम किया है कि हम अपनी पेशेंट के जो हेल्थ कंसर्न्स हैं वो हमने फूड से डील करने हैं, या जो हमारे हेल्थ कंसर्न्स हैं 97% भी अगर हम कहते हैं तो वो हमारी डाइट पे डिपेंड करते हैं। डाइट से हमें क्या मिल रहा है, मैक्रोस मिल रहा है, माइक्रोस मिल रहा है। तो जब भी हमने अपने पेशेंट की डायग्नोस करना है, डायग्नोस्टिक स्किल्स पे काम करना है, अपनी स्किल्स पे, और पेशेंट की जब उसकी असेसमेंट करनी है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो मैक्रोस में डेफिशिएंट तो नहीं आ रहा। लाइक जिस तरह अगर हमारी बिरयानी अच्छी नहीं बनी तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारी जो चावल की और मीट की और ऑयल की रेशियो है उसमें तो कहीं मसला नहीं आ रहा। ठीक है, सेकंड नंबर पे फिर हम देखेंगे कि नहीं हमारे स्पाइसेस थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे। सो अगर हम मैक्रोस की देखें तो मैक्रोस की एक गो थ्रू होते हैं इनके फंक्शंस पे। मेन मैक्रोस में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। इसके हम फंक्शंस की बात करें तो ये आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, वी ऑल नो अबाउट दिस। ये आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी प्रॉपर स्लीप। हेल्प करता है आपको, प्रिवेंट करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है बाय प्रिवेंटिंग द डिजीजेस। यूजफुल होता है फॉर द वेट रिडक्शन, हेल्प करता है आपकी मेमोरी शार्पनेस पे। उसके साथ साथ आपकी कुछ पेशेंट्स को अगर इफ यू आर फेसिंग फ्रॉम द आपके डिप्रेशन, एंजाइटी स्टफ्स को, तो उसको भी अपलिफ्ट करने की, आपकी मूड को इम्प्रूव करने की में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट्स।
प्रोवाइड करता है फाइबर को, वी ऑल नो, प्रिवेंट करता है ब्लड को इम्प्रूव, ब्लड क्लॉटिंग को इम्प्रूव करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, और बेस्ट होता है न्यूट्रिएंट्स फॉर थेरेपी। इट्स मीन अगर हमारी इसमें से किसी एक चीज में भी इशू आ रहा है, तो इसका मतलब है वी मस्ट चेक, हैव आई लुक ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अगर आपके पेशेंट क्लेम कर रहा है कि उसको इंसोम्निया का इशू आ रहा है, ही कांट टेक द प्रॉपर नाइट स्लीप, तो क्योंकि हम सबको पता है कि नाइट स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, प्रॉपर फंक्शनिंग, आपकी न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन में क्रिटिकल रोल प्ले करती है रात की नींद। अगर आपकी पेशेंट क्लेम कर रहा है कि वो रात को नहीं प्रॉपर तरीके से सो पा रहा, उसको नींद नहीं आती, तो फिर आप उसका हिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट इनटेक चेक करें एज अ मीन कि उसको इसमें तो डेफिशिएंसी नहीं आ रही। लाइक एनर्जी, अगर वो लेथार्जिक फील करता रहता है, तो हमारे पास एक रीजन होंगी, वी कैन गो फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक ऑफ द पेशेंट, हम उसको चेक करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिस तरह अगर हम अपने क्लाइंट्स की हिस्ट्री पर देखते हैं, तो 99% जो पेशेंट्स होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें पर्टिकुलरली जो गैस्ट्रिक एसिडिटी का इशू आ रहा है, गैस्ट्रिक एसिडिटी के साथ साथ वो रिफ्लेक्स डिजीज इशू आ रहा है, तो उसमें हम सबसे पहले जब उनके पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तो हम देखते हैं कि दे, अब तो उनको वो डिजीज हो गई, लेकिन डिजीज की हमने क्या बात की थी, प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम हुआ किस वजह से, वो भी हमने डायग्नोज करना है, ताकि हम उस पर काम कर सके, उनको हील करवा सकें विद द हेल्प ऑफ द फूड। क्योंकि कोई भी एक हेल्दी लिविंग, एक पेशेंट जो होता है, जब भी डॉक्टर के पास या डाइटिशियन के पास विजिट करता है, वो कभी भी नहीं ये चाहता कि मैं इसको विजिट को प्रोलॉन्ग रखूं, वो चाहता है कि जितनी जल्दी मुझे उससे क्योर हो जाए, वो उतनी जल्दी उस डॉक्टर को या डाइटिशियन को एक अच्छा डाइटिशियन कहता है। तो आपके लिए, जब आप अच्छे डाइटिशियन तभी बन सकते हैं जब आप डायग्नोज कर सकेंगे उसका इशू क्या, किस वजह से आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रोटीन इज द सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द बॉडी। मैक्रोन्यूट्रिएंट ये आपके मसल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बोन मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को, स्लो करता है एजिंग प्रोसेस को, प्रिवेंट करता है हेयर डैमेज को, हार्मोन बैलेंस को कंट्रोल करता है, इम्यून सिस्टम रेगुलेट करता है, और इसके साथ साथ आपकी स्किन हेल्दी रखता है। आजकल एज आई एम इन टच विद द गायनी डिपार्टमेंट ऑफ द क्लिनिक, तो उसमें जब भी मैं पेशेंट्स की असेसमेंट कर रही होती हूँ, फीमेल पेशेंट्स व्हेन एवर विजिट फॉर मी फॉर द कंसीविंग इश्यूज और फॉर द पीसीओएस इश्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड like to check their diet in the term of the protein intake, क्योंकि प्रोटीन का आपकी बॉडी के अंदर बहुत क्रिटिकल रोल है इन द हार्मोनल इम्बैलेंस। आपकी बॉडी प्रोटीन, आप वी ऑल नो, जितनी हमारी आइडियल बॉडी वेट, जितना हमारा वेट होता है अप्रोक्सीमेटली हमें उतने ही ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम अपनी भी एक रखते, अगर आप लोग अपनी भी चेक करें, आप लोग भी उतनी प्रोटीन डेली के अमाउंट में कंज्यूम नहीं करते होंगे। इसका मतलब है इसमें से हमें कोई भी इशू आएगा, हमारी बोन्स की, जिस तरह आज के छोटे बच्चों में भी ऑस्टियोपोरोसिस और बोन्स के इशू, इट नेवर मीन्स कि सिर्फ वो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आपकी बोन की जो मिनरल डेंसिटी है वो प्रोटीन पे डिपेंडेंट है। इससे सिर्फ आप कैल्शियम को हिट नहीं करोगे, आप अपने पेशेंट की भी प्रोटीन कैलकुलेशन, प्रोटीन इनटेक को भी कैलकुलेट करोगे कि आप उसको सही ले रहा है या नहीं ले रहा। इसलिए आपके कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, आपको इनके फंक्शंस पे जितनी अच्छी ग्रिप होगी, के साथ कितने रोल्स हैं, उतने अच्छा होगा आपके लिए अपनी पेशेंट की मेडिकल कॉम्प्लिकेशन को डायग्नोज करना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay. Next slide, please. Fat. Sadaf, can you hear me? Can you hear me? Hello, everyone. Can you hear me? Yes. Yes. Okay. Sadaf. Okay. Sadaf, next slide, please. Thank you for your response, everyone.
Is there any issue with the Sadaf? Okay, thank you, Sadaf. Uh, Along with the carbs, protein, now it's time for go for the importance of the fat. Fats, we all know about the very important for the absorption of the vitamins, so fat soluble vitamins. Fat is very important to improve our immune system and again that regulating of the body temperature and feeling of the satiety. And along with that, fat is also very important for the production of hormone, particularly for the sex hormones. So whenever your patient is claiming any difficulty in these types of disease, you can go for the fat intake of the patient. Next slide, please. मैम आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही. अब आ रही है? I'm trying my best to speak with the. Can you hear me now? Sadaf, can you hear me now? मैम आई थिंक उनका नेट Then what's the issue? Sadaf का net issue है. Okay, thank you. So should I go for the next slide? आपके साथ ग्रुप में पहले पीपीटी शेयर हो जाती है? आप लोगों के पास है पीपीटी? है क्या सीन है? Should I go further or should I stay and wait? Okay, पहले आपके साथ स्लाइड शेयर नहीं होती तो so we can only wait for the Sada. So she can share with us. What will be the reason of participating in information from that dietary management? Okay. Who is the host of the this